Hello dear students. In last lecture we have completed up to question number 28. Now question number 29. It is very similar to question number 28. In question number 28 we have proved 4 points. We have checked where 4 points given are coplanar or not. Here we have to show that these three given vectors are coplanar vectors. Now we know that the coplanarity of three vectors, if any one of these given three vectors is linear combination of another two vectors, then that that three vectors are said to be coplanar vectors. Now look at this. We'll give the names for these vectors. Let A vector is suppose 4i cap plus 13j cap minus 18k cap. B vector is I cap minus 2j cap plus 3k cap. And C vector as 2i cap plus 3j cap minus 4k cap. Now we'll consider, let A vector be some lambda into B vector plus some mu into C vector. Now we are going to find the values of lambda and mu. Instead of lambda and mu, you can use any scalars or any letters, that x, y or mn also. ठीक है, तो substitute करते हैं values. Therefore we have A vector is nothing but 4i cap plus 13j cap minus 18k cap is equal to lambda into this I cap minus 2j cap plus 3k cap and plus mu into bracket 2i cap plus 3j cap minus 4k cap. Now multiply this bracket by lambda, this bracket by mu, and collect them together. Therefore we have 4i cap plus 13j cap minus 18k cap is equal to lambda plus 2 mu into I cap plus minus 2 lambda plus 3 mu into j cap and plus 3 lambda minus 4 mu into k cap. Compare LHS and RHS, दोनों को compare करते हैं. On comparing, we have lambda plus 2 mu is equal to 4, call it as equation number 1, minus 2 lambda plus 3 mu is equal to 13, call it as equation number 2nd, and 3 lambda minus 4 mu is equal to minus 18, call it as equation number 3rd. Now I have already told you in the last lecture that when we get such three equations in lambda and mu, solve any two equations simultaneously, get the values of lambda and mu, and if obtained values of lambda and mu satisfies the third equation, then we can say that the values of lambda and mu exists, and we can write this A vector as a linear combination of these two vectors. तो check करेंगे, देखिए, therefore we can say that solving equations first and second, solving equations first and second, what will you get? Multiply equation 1 by 2, we have 2 lambda plus 4 mu is equal to 8, and this is minus 2 lambda plus 3 mu is equal to 13. करते हैं इनकी एडिशन, तो ये कैंसिल हो जाएगा. 4 म्यू प्लस 3 म्यू 7 म्यू इज इक्वल टू 21, तो म्यू की वैल्यू आएगी 3. पुट वैल्यू ऑफ म्यू इज इक्वल टू 3. as we are solving equations first and second, substitute this value of mu in either first or second. Don't substitute now here it in third. Mu is equal to 3, it gives us lambda plus 2 into mu means 6 is equal to 4. We can write here from equation first. Therefore, we can say that lambda is equal to minus 2. Now we have to verify whether the third equation
is satisfied by these values of lambda and mu or not. Therefore, for equation third, LHS is equal to 3 lambda minus 4 mu, that is 3 into minus 2 minus 4 into 3, that is minus 6 minus 12, that is minus 18, and RHS of this equation is minus 18, that is equal to RHS. Hence we can say that LHS is equal to RHS. Therefore we can say that lambda and mu exists and lambda is equal to minus 2 and mu is equal to 3. Therefore your A vector becomes, A vector is equal to, value of lambda is minus 2 means minus 2b vector plus 3c vector. Means here we can observe that A vector can be expressed as a linear combination of b vector and c vector. Therefore we can say that A vector is linear combination of B vector and C vector, and hence we can say that therefore A vector, B vector, C vector are coplanar vectors. In this way we have proved that these three given vectors are coplanar vectors. समझ में आ रहा है आपको? तो ये क्वेश्चन अच्छे से नोट कर लीजिए, इसके नोट्स बना दीजिए. चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ. Now look at for next question 30. Express the vector minus I plus 3 minus 3j plus 4k as a linear combination of these three vectors. Here also we'll give the names for these vectors. Let A vector, or we'll give the name for this vector as P vector. P vector is equal to minus I cap minus 3j cap plus 4k cap. A vector is equal to 2I cap plus j cap minus 4k cap. B vector is equal to 2I cap minus j cap plus 3k cap, and C vector is equal to 3I cap plus j cap minus 2k cap. We have given the names for, I have given the names for these four vectors. Now we'll consider, let P vector is equal to some x into A vector plus y into B vector plus z into C vector. We can use any three scalars here, x, y, z. Instead of x, y, z, we can write lambda, mu and delta also. We can use m and p also, but p is present here. We will write it as x, y and z. So substitute these values here. Therefore, this minus I minus 3j plus 4k is equal to x into bracket this 2I plus j minus 4k plus y into bracket 2I minus j plus 3k plus z into bracket 3I plus j minus 2k. Okay, understood? Now multiply this bracket by x, this bracket by y and this bracket by z, and then collect them together. We have it is, therefore, minus I minus 3j plus 4k is equal to. Now look at these three terms of iota here, or three terms of I, that is 2x, 2y plus 2y and 3z. Means in first bracket 2x plus 2y plus 3z into I cap plus, फिर तीन टर्म्स आएंगे j के, x minus y and plus z, x minus y plus z into j cap plus
this minus 4x plus 3y and minus 2z into k cap. दोनों साइड को कंपेयर कीजिए. On comparing, what will you get? कंपेयर करो तो मिलेगा 2x plus 2y plus 3z is equal to minus 1. 2x plus 2y plus 3z is equal to minus 1. Call it as equation number 1. Then another equation is x minus y plus z is equal to x minus y plus z is equal to minus 3. Call it as equation second. And compare the coefficients of k. We have it is minus 4x plus 3y minus 2z is equal to 4. Call it as 3. Now to find the values of x, y, z, we have to solve these three equations. और जब ये 3 इक्वेशन सॉल्व करके हमें x, y, z की वैल्यू अगर मिलती है तो that value we have to substitute here in this equation. Then we can say that we can express that vector in terms of. और अगर सॉल्व करके हमें अगर x, y, z की वैल्यू अगर मिलती नहीं है तो we can say that this vector cannot be represented in the form of linear combination of these 3 vectors. तो इनको सॉल्व करने के लिए आप मेथड कोई भी यूज कर सकते हो. जैसे आपने 11th स्टैंडर्ड में डिटर्मिनेंट में क्रैमर्स रूल यूज किया था, उसको यूज कर सकते हैं. आप मैट्रिसेस में 3 इक्वेशंस कैसे सॉल्व किए ये 12th स्टैंडर्ड में आप सीख चुके हो, तो उससे हम सॉल्व कर सकते हैं या एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं. एलिमिनेशन मेथड क्या होती है? कोई भी एक लेटर को आप एलिमिनेट करो और जैसे कि मैं अब फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड आई कैन राइट फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, इसको लिखता हूं मैं 2x plus 2y plus 3z is equal to minus 1 और इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2x minus 2y plus 2z is equal to minus 6. तो जब इनको एडिशन करेंगे हम तो 2y और minus 2y कैंसिल हो जाएगा, आपको एक इक्वेशन मिलेगा 4x plus 5z is equal to minus 7. इसको लिखेंगे इक्वेशन नंबर 1. समझ में आ रहा है आपको? और वैसे हम फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड, फ्रॉम जैसे हमने यहाँ पे y एलिमिनेट किया तो इन 2 इक्वेशन से भी y एलिमिनेट करते हैं इनको सॉल्व करके. तो फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड, फ्रॉम सेकंड इसको फोर्थ लिखेंगे, फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड व्हाट विल यू गेट? इसको हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3x minus 3y plus 3z is equal to minus 9 और ये minus 4x plus 3y minus 6z is equal to 12. तो ये 3y और 3y कैंसिल हो जाएगा, minus x minus 3z is equal to 3 मिलेगा. इसको लिखेंगे हम नंबर 5. जैसे x और z के हमें 2 इक्वेशंस मिलेंगे तो सॉल्विंग इक्वेशंस फोर्थ एंड फिफ्थ, फोर्थ और फिफ्थ को सॉल्व करो तो क्या मिलेगा? ये 4x plus 5z is equal to minus 7. इसको 4 से मल्टीप्लाई करो, minus 4x minus 12z is equal to 12. और इनकी सब्ट्रैक्शन करनी है, इनके एडिशन करेंगे तो यहां पे आएगा minus 7z is equal to 5. तो z की वैल्यू आ गई आपको, z is equal to minus 5/7. ठीक है, फिर से एक बार चेक कर लेते हैं कहीं पर कुछ गड़बड़ तो नहीं हुई. ये चेक करने के लिए हम जैसे कि ये सेकंड इक्वेशन हमें मिला है -x -6z, शुरू से चेक करते हैं. इक्वेशन फर्स्ट 2x plus 2y plus 3z is equal to -1, पहला इक्वेशन करेक्ट है. फिर x minus y plus z is equal to -3, दूसरा भी करेक्ट है.
माइनस 4x प्लस 3y माइनस 2z इज इक्वल टू 4, तीसरा भी करेक्ट है। अब ये दो इक्वेशंस को सॉल्व किया हमने, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2x माइनस 2y प्लस 2z इज इक्वल टू माइनस 6, इनके एडिशन करेंगे तो ये 2y और 2y कैंसिल हो जाएगा प्लस माइनस, 4x प्लस 5z इज इक्वल टू माइनस 7। अब इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड को सॉल्व करते समय इसको 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3x माइनस 3y प्लस 3z इज इक्वल टू माइनस 9, और ये माइनस 4x प्लस 3y माइनस 6z नहीं, माइनस 2z था यहां पर, माइनस 2z इज इक्वल टू 12 आया। ठीक है, ऐसे एक आधी गलती हो सकती है, इसको आप करेक्ट कर लीजिए। देखो फिर से चेक करने का फायदा क्या होगा, जैसे ही ये फ्रैक्शनल वैल्यू आ गई मेरे दिमाग में आया कि इसको चेक करना चाहिए, तो ये इसको जब एज इट इज लिखेंगे इक्वेशन तो माइनस 4x प्लस 3y माइनस 2z इज इक्वल टू 4, इसको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमने इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई किया था। हो जाता है माइनस एक्स प्लस जेड, माइनस एक्स प्लस जेड इज इक्वल टू माइनस 5 आ गया। हम करेक्शन कर लेते हैं यहां पे, तो इक्वेशन 4 एंड 5 अब सॉल्व करेंगे, तो इसको थोड़ा सा करेक्शन कर लेते हैं। सॉल्विंग इक्वेशन 4 एंड 5 क्या मिलेगा, देखिए ये पहला इक्वेशन एज इट इज लिखेंगे हम 4x प्लस 5z इज इक्वल टू माइनस 7, और इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 4x प्लस 4z इज इक्वल टू आएगा माइनस 20। दोनों की एडिशन करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, 9z इज इक्वल टू आएगा माइनस 27, तो z की वैल्यू आ गई माइनस 3। समझ में आ रहा है आपको, z की वैल्यू माइनस 3 आ गई। अब z की वैल्यू किसी भी फोर्थ या फिफ्थ इक्वेशन में रखिए, फिफ्थ में इजी है, देयरफॉर फ्रॉम फिफ्थ इक्वेशन z की वैल्यू माइनस 3 यहां पे लिखिए, तो माइनस एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस 5, माइनस एक्स इज इक्वल टू आएगा माइनस 2, तो x इज इक्वल टू क्या आएगा 2। समझ में आ रहा है आपको, x और z के वैल्यूज हम किसी भी एक इक्वेशन में यहां पे रखेंगे। फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड x की वैल्यू 2 है, यहां पे 2 लिखेंगे, माइनस y माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस 3, तो 2 माइनस वाई इज इक्वल टू आएगा 0, तो y की वैल्यू आ गई 2। तो आपको मिला x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 2 और z इज इक्वल टू माइनस 3। हेंस वी कैन से दैट p वेक्टर कैन बी रिटन एज, इसमें वैल्यूज रखते हैं 2a वेक्टर प्लस 2b वेक्टर माइनस 3c वेक्टर। In this way, this vector p vector can be expressed as linear combination of given 3 vectors. जब भी आपको ऐसे 4 वेक्टर्स दिए हैं और 4 में का कोई भी एक वेक्टर अदर 3 वेक्टर्स के लिनियर कॉम्बिनेशन में आपको प्रूव करना है, यू कैन यूज दिस मेथड। ये एलिमिनेशन मेथड थोड़ी ज्यादा इजी जाती है, इसलिए मैंने बोला इसमें टाइम आपका सेव होगा। नहीं तो आप क्रैमर्स रूल भी यूज कर सकते हो जो आपने डिटर्मिनेंट में सीखा है, x इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन टी, यानी यहां पे आपको d, dx, dy, dz ऐसे 4 डिटर्मिनेंट सॉल्व करने पड़ेंगे और उसमें से x, y, z के वैल्यूज निकालने पड़ेंगे। ठीक है, वो भी मेथड आप यूज कर सकते हो, दैट इज वेरी इजी। ठीक है, समझ में आया है, तो इसको आप नोट कर लीजिए, इसको सॉल्व कर लीजिए। नोट्स में जो इसके आगे का क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर 31, इट इज वेरी वेरी सिमिलर टू, यानी यही क्वेश्चन रिपीट हो गया है, तो हम डायरेक्टली चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ। Now look at for question number 32, which is given in the examples. By vector method, prove that line joining midpoints of any two sides of a triangle is parallel to third side and equals half of its length. The property which you have studied in the 9th standard. midpoint theorem बोल के आपने ये 9th standard में ज्योमेट्री में प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि किसी भी ट्रायंगल में कोई भी दो साइड्स के मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाली सेगमेंट जो होती है, दैट इज
पैरेलल टू थर्ड साइड एंड इट्स लेंथ इज ऑलवेज हाफ ऑफ द थर्ड साइड। तो इसको हमें बाय वेक्टर मेथड प्रूव करना है, वेक्टर मेथड। अब इसको प्रूव करने के दो तरीके हैं। अब जैसे कि हम ये कुछ कंसेप्ट सीखने के पहले सीख रहे हैं, तो जितने कंसेप्ट हमने सीखे हैं उस हिसाब से मैं आपको इसको प्रूव करके देने वाला हूं। आपके नोट्स में जो प्रूफ है वो अलग है, विच इज रिलेटेड टू द मिड पॉइंट फॉर्मूला विच यू हैव टू स्टडी आफ्टर दिस लेक्चर। हम नेक्स्ट लेक्चर में जब सेक्शन फॉर्मूला पढ़ाई करेंगे तब उसके बाद आपको मिड पॉइंट फॉर्मूला समझ में आएगा। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला मैं इसमें यूज नहीं करने वाला हूं, इसको जो टेक्स्ट बुक में आपके सॉल्यूशन दिए हैं उस हिसाब से, क्योंकि अब तक सेक्शन फॉर्मूला नहीं हुआ है तो अपने जितने भी कंसेप्ट अब तक सीखे हैं उससे रिलेटेड हम इसको प्रूव करने जा रहे हैं। ठीक है, तो मैं ये क्यों बता रहा हूं, क्योंकि नोट्स में दिया हुआ जो सॉल्यूशन है दैट इज रिलेटेड टू द मिड पॉइंट फॉर्मूला, वो भी सही है। अब ये कैसे करना है विदाउट यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला ये भी आप समझ लीजिए। अब इसमें मैंने दो टाइप से ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसलिए और मैं ये क्वेश्चन, इफ m and n are the midpoints of the sides PQ and PR of triangle PQR respectively, then prove that MN is always parallel to QR and length of QR is always twice the length of MN or length of MN is half of the length of QR। ठीक है, तो जब आपको क्वेश्चन ऐसा दिया है तो फिगर डायरेक्टली हम निकाल सकते हैं, जब क्वेश्चन ऐसा दिया है तो हमें फिगर के बारे में कुछ एक्सप्लेनेशन लिखना पड़ेगा। तो हम यहां पे लिखते हैं कंसीडर ट्रायंगल PQR with M as midpoint of PQ and N as midpoint of PR। ठीक है, तो हमने ये ट्रायंगल PQR कंसीडर किया है जिसमें PQ का मिड पॉइंट M लिया है, PR का मिड पॉइंट N। सिर्फ कंसीडर के जगह पे गिवन ऐसा लिखा तो ये सेकंड क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। समझ में आता है? अब इसमें हम एक रिलेशन फॉर्म करेंगे। पहले जैसे हमें पता है कि M इज अ मिड पॉइंट ऑफ PQ, अब PM का डायरेक्शन और PQ का डायरेक्शन सेम है, तो देयरफॉर हम यहां पे लिखेंगे PM इज नथिंग बट PM वेक्टर, जैसे वेक्टर के तौर पे लिखेंगे तो हाफ ऑफ PQ वेक्टर होगा, क्योंकि गिवन है M इज अ मिड पॉइंट ऑफ PQ as well as this PN vector is half of PR vector। PN ये PR के हाफ है। समझ में आया यहां तक? अब हम इस ट्रायंगल में तैयार करते हैं ट्रायंगल लॉ बाय यूजिंग ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, यूजिंग triangle law of vector addition, क्या मिलेगा? समझो हमें QR वेक्टर निकालना है, QR वेक्टर निकालना है तो QR वेक्टर इज इक्वल टू क्या लिखेंगे हम? QP वेक्टर। समझ में आ रहा है आपको? QR वेक्टर निकालना है तो QP वेक्टर प्लस PR वेक्टर। इतना समझ में आया आपको? दैट इज नथिंग बट, देयरफॉर वी कैन से दैट QR वेक्टर इज इक्वल टू QP वेक्टर। ये क्या है? इट कैन बी रिटन एज माइनस PQ वेक्टर प्लस PR वेक्टर। समझ में आ रहा है?
अब देखिए माइनस पी क्यू, पी क्यू वेक्टर यानी क्या है, जब पीएम वेक्टर इज हाफ ऑफ पी क्यू वेक्टर है तो पी क्यू वेक्टर कैन बी रिटन एज 2 इंटू पीएम वेक्टर। तो इसको लिखेंगे देयरफॉर क्यू आर वेक्टर इज इक्वल टू -2 इंटू पीएम वेक्टर प्लस पी आर वेक्टर यानी क्या होगा, 2 इंटू पीएन वेक्टर, 2 इंटू पीएन वेक्टर। जब इसमें से 2 कॉमन निकालेंगे तो क्यू आर वेक्टर इज इक्वल टू आएगा, 2 कॉमन लेंगे तो ये आएगा पीएन वेक्टर माइनस पीएम वेक्टर। देयरफॉर क्यू आर वेक्टर इज इक्वल टू आएगा 2 इंटू ब्रैकेट ये पीएन वेक्टर माइनस को हमने किया प्लस प्लस एम पी वेक्टर। इसको हम जैसे हमें पता है कि वेक्टर एडिशन इज कम्यूटेटिव तो हम इसको लिखेंगे क्यू आर वेक्टर इज इक्वल टू 2 इंटू ब्रैकेट एम पी वेक्टर प्लस पी एन वेक्टर। और ट्रायंगल लॉ का यूज अगर हम करते हैं, अब इसका टर्मिनल पॉइंट और इनिशियल पॉइंट सेम है तो हम लिखेंगे क्यू आर वेक्टर इज इक्वल टू 2 इंटू एम एन वेक्टर। अब जब एक वेक्टर दूसरे वेक्टर के स्केलर मल्टीपल में होता है तो हम इनको पैरेलल वेक्टर्स कहते हैं, बराबर है। तो देयरफॉर वी कैन से दैट mn vector is parallel to qr वेक्टर। एक कंडीशन हो गई और दूसरी कंडीशन क्या लिखेंगे, एंड मैग्नीट्यूड ऑफ क्यू आर वेक्टर इज ट्वाइस द मैग्नीट्यूड ऑफ mn वेक्टर। जब दो वेक्टर इक्वल है तो उनके मैग्नीट्यूड भी सेम होते हैं, दोनों तरफ मैग्नीट्यूड अगर लगाएंगे तो मैग्नीट्यूड ऑफ क्यू आर वेक्टर इज 2 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ एम एन वेक्टर। तो यहां पे हमें दोनों कंडीशन मिल गए, देयरफॉर वी कैन से दैट एम एन इज पैरेलल टू पी क्यू एंड लेंथ ऑफ क्यू आर, सॉरी एम एन इज पैरेलल टू क्यू आर एंड लेंथ ऑफ क्यू आर is nothing but equal to twice the length of mn। समझ में आया आपको? तो यहां पे हमारा ये जो ज्योमेट्रिकल एप्लीकेशंस ऑफ ट्रायंगल लॉ, जितने भी कंसेप्ट हमने आज तक सीखे हैं उसका ये ज्योमेट्रिकल एप्लीकेशन है जिसमें हम इस टाइप के क्वेश्चंस प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, इसका सॉल्यूशन देखिए। अब ये सॉल्यूशन देखने के बाद आप जो नोट्स में दिया हुआ सॉल्यूशन है वो भी देखिए, वहां पे हमने मिड पॉइंट फार्मूला यूज किया है। मिड पॉइंट फार्मूला तो आपको पता है, मिड पॉइंट फार्मूला हमने 10th स्टैंडर्ड में भी स्टडी किया था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, तो उसी से रिलेटेड है, लेकिन ये सिर्फ वेक्टर के फॉर्म में होगा तो वहां से भी आपको सॉल्यूशन पता चलेगा। ठीक है, तो इसको आप 2 टाइप से सॉल्व कर सकते हो, इसमें का एक टाइप मैंने आपको समझा के दिया है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ, which is the last question from this concepts, और उसके आगे हम नेक्स्ट थ्योरम्स जैसे सेक्शन फार्मूला फॉर वेक्टर्स वो सेक्शन फार्मूला सीखने जाएंगे। पहले क्वेश्चन नंबर 33। Now look at for question number 33. In quadrilateral ABCD, if M and N are the midpoints of the diagonals AC and BD respectively, then prove that AB vector plus AD vector plus CB vector plus CD vector is equal to 4 into MN vector. This is also question related to the midpoint formula. Using midpoint formula we can easily solve it, but still you have not studied the midpoint formula, therefore we are going to study this example according to this textbook. जो कंसेप्ट हमने अब तक सीखे हैं उस हिसाब से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी गिवन है, गिवन इन क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी M and N are the midpoints
of diagonals AC and BD respectively. ठीक है, तो देखिए M is a midpoint of AC दिया है, therefore we can say that AM vector and MC vector, these two vectors are same. AM vector is nothing but equal to MC vector because they are in the same direction, AM and MC vector. And M is a midpoint means their lengths are same, their direction is same, as well as this dn vector is nothing but equal to dn का डायरेक्शन ये होगा, तो इट इज नथिंग बट इक्वल टू nb वेक्टर. तो हम कहेंगे देयरफॉर mc को हम अगर cm लिखते हैं तो माइनस लिखना पड़ेगा, तो am वेक्टर इज नथिंग बट माइनस cm वेक्टर, एंड दिस nd को हम dn भी लिख सकते हैं या nb को हम bn भी लिख सकते हैं, तो dn वेक्टर इज इक्वल टू आएगा माइनस bn वेक्टर. जैसे कि हमने इनिशियल पॉइंट और टर्मिनल पॉइंट को चेंज किया, इसलिए हम इसको माइनस में लिख सकते हैं, इसको लिखेंगे फर्स्ट. ठीक है, समझ में आया? अब यूजिंग पॉलीगोनल लॉ of vector addition. AB वेक्टर क्या आएगा? देखिए पहला वेक्टर आपका AB वेक्टर है, तो AB वेक्टर निकालना है. AB वेक्टर इज नथिंग बट AM वेक्टर प्लस MN वेक्टर प्लस NB वेक्टर. इसको लिखेंगे हम सेकंड. समझ में आ रहा है आपको? AB वेक्टर कैन बी रिटन एज AM प्लस MN प्लस NB. सिमिलरली अगर AD वेक्टर आपको निकालना है, AD वेक्टर इज इक्वल टू, अब देखिए AD वेक्टर कैन बी रिटन एज AM वेक्टर प्लस MN वेक्टर प्लस ND वेक्टर. समझ रहे हो आप? पॉलीगोनल लॉ यूज कर रहे हैं, इसको लिखेंगे थर्ड. जैसे हमने AB और AD निकाले, सिमिलरली CB भी निकालते हैं. CB वेक्टर क्या आएगा? देखिए CB वेक्टर इज इक्वल टू, CB वेक्टर इज CM वेक्टर प्लस MN वेक्टर प्लस NB वेक्टर. CB निकालना है, CM प्लस MN प्लस NB वेक्टर, NB वेक्टर, इसको लिखेंगे फोर्थ. और वैसे CD निकालिए, CD वेक्टर इज नथिंग बट इक्वल टू CD वेक्टर, तो CM वेक्टर प्लस MN वेक्टर प्लस ND वेक्टर, इसको लिखेंगे फिफ्थ. समझ में आ रहा है आपको? AB, AD, ACB और CD निकाल दे. अब ये चारों के एडिशन करते हैं. एडिंग सेकंड, थर्ड, फोर्थ, वी हैव क्या मिलता है? देखिए AB वेक्टर प्लस AD वेक्टर प्लस CB वेक्टर प्लस CD वेक्टर इज इक्वल टू, देखिए अब जब एडिशन करेंगे तो AM दो जगह पे, तो इसको लिखेंगे 2AM वेक्टर प्लस CM भी दो जगह पे, तो इसको लिखेंगे 2CM वेक्टर प्लस, अब MN सब जगह पे है, ये 4MN वेक्टर प्लस, ये आएगा NB 2 है और ND 2 है, तो इसको लिखेंगे 2NB वेक्टर प्लस 2ND वेक्टर. समझ में आ रहा है आपको?
that is nothing but equal to 2 into bracket this am vector plus cm vector plus this 4mn vector plus 2 into bracket nb vector plus 2 nd vector। 2 तो कॉमन लिया हमने। अब देखिए am और cm, am और cm क्या है, दे आर विथ अपोजिट साइंस। am वेक्टर इज नथिंग बट माइनस cm वेक्टर, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि इट इज नथिंग बट 2 इंटू ब्रैकेट माइनस cm वेक्टर प्लस cm वेक्टर एज इट इज प्लस ये 4mn वेक्टर। और जैसे हमने फर्स्ट ब्रैकेट में किया है nb वेक्टर इज नथिंग बट, nb को nb ही लिखेंगे। अब देखिए यहां पे थोड़ा सा therefore हम लिख सकते हैं therefore nd वेक्टर इज नथिंग बट इक्वल टू माइनस nb वेक्टर। दोनों के भी साइन चेंज किए, ये हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो इसको लिखेंगे हम nb वेक्टर और माइनस nb वेक्टर, तो ये जीरो वेक्टर बन जाएगा, ये भी जीरो वेक्टर हो जाएगा, यानी 2 इंटू जीरो वेक्टर प्लस 4mn वेक्टर प्लस 2 इंटू जीरो वेक्टर, दैट इज नथिंग बट 0 प्लस 4mn वेक्टर प्लस 0 वेक्टर, दैट इज नथिंग बट 4mn वेक्टर। तो हमें मिलता है दिस ab वेक्टर प्लस ad वेक्टर प्लस cd वेक्टर प्लस cb वेक्टर इज नथिंग बट 4mn वेक्टर। ठीक है, जो प्रूव करना था आपको वो यहां पे प्रूव हो सकता है। ठीक है, तो ये प्रूफ आप नोट कर लीजिए। इसके साथ ही जो आपको अपने नोट्स में प्रूफ दिए हैं वो हम ज्यादातर यूज करते हैं, क्योंकि दैट इज रिलेटेड टू द मिड पॉइंट फार्मूला, और इसके आगे हम वो कंसेप्ट सीखने जा रहे हैं। तो जब बोर्ड एग्जाम में ऐसे ये क्वेश्चन आएगा तो आप मिड पॉइंट फार्मूला भी यहाँ पे डायरेक्टली यूज कर सकते हो, लेकिन आप टेक्स्ट बुक में जो दिया हुआ प्रूफ है और अपने नोट्स में दिया हुआ प्रूफ है, इसका कंफ्यूजन आपको ना हो जाए, इसलिए मैंने ये समझा के दिया है। ठीक है, तो आज हम यहाँ पे एक पहला पार्ट वेक्टर का कंप्लीट कर लेते हैं। इसके आगे हमें सीखने हैं थ्योरम्स ऑन सेक्शन फॉर्मूला ऑफ सेगमेंट, यानी द पॉइंट डिवाइड्स द सेगमेंट इन इंटरनली और एक्सटर्नली। तो सेक्शन फॉर्मूला हमें सीखना है, तो उसके लिए जो भी कंसेप्ट लगते हैं, जो जैसे कि कुछ ट्रायंगल के प्रॉपर्टीज हमें पता होना चाहिए, कुछ कंसेप्ट आपको ज्योमेट्रिकली पता होना चाहिए, और उसके आगे वो थ्योरम्स, तो ये सब हम नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे। आज के लेक्चर में इतना काफ़ी है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, टुगेदर विथ ऑल द कंसेप्ट्स रिलेटेड टू द सेक्शन फॉर्मूला। थैंक यू।